Ladies and gentlemen, let us put our hands together for a resounding round of applause as we witness this proud and inspiring. Thank you so much everyone. This marks a truly memorable moment in our event today. Thank you. Now it's time to hear from the person whose vision and determination brought Step Out to life, a man who has not only witnessed the challenges by unemployed engineers but has personally lived through them, transforming his experience into meaningful insights for today's generation. Ladies and gentlemen, may I now invite the author of Step Out, Mr. Vijay Saxena, to please come on stage and share his journey, the inspiration, research and the purpose behind this remarkable book that sheds light on the real issues of employability and ever-evolving expectations of the industry. Now I would like to call Mr. Vijay Saxena, the author of Step Out. Good evening, everyone. Yeah, good evening, everyone. It's an honor to be here among such notable guests, respected seniors, and bright young minds. Today I stand before you to share a journey that began with one simple question came to my mind, that why does the industry still struggle to find the right skilled engineers it needs? So since 2012, on the position of Regional Service Head, I have been working very closely with the recruitment process. Basically, during this journey, I started seeking answers to my own questions while conducting interviews. In 2015, I joined a multinational Danish company as a national service head. At that time, I thought perhaps now we would finally get well-prepared engineering graduates. But once again, during interviews, I noticed the same situation. Some candidates were not able to clear the selection process, and those who did often left the organization within just a few weeks. So यहाँ पर Step Out के पीछे का मुद्दा ये है कि इंडस्ट्री में, जब मैं इंडस्ट्री के विंडो से इस मैटर को देखता हूँ कि सर कि इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट है इंजीनियर्स, इंडस्ट्री को इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट है, बट समहाउ इंजीनियर्स आर देयर, बट इंडस्ट्री में वैक्यूम है. इंडस्ट्री इज स्टिल सर्चिंग फॉर द स्किल ग्रेजुएट्स, बट स्किल जो ग्रेजुएट्स हैं they don't want to come into the industry due to various reasons. So somehow a gap is there. So many engineers are there, but so many, one of the gap is there. Still the industries are working and they are searching for the basically skilled manpower. So the basic concept of the book is basically right from here. कि मुद्दा यह है कि लोग हैं भी और नहीं भी हैं, और इंडस्ट्री स्टिल अभी भी ढूंढ रही है लोगों को. सो 2015 से मैंने ये कॉन्सेप्ट 2012 से जब मैं यूरेका फॉक्स में था, एक 3000 करोड़ की कंपनी से, तो 3000 करोड़ की कंपनी उसको इंजीनियर नहीं मिलते. अगर 3000 करोड़ की कंपनी को इंजीनियर नहीं मिलेंगे, मैन पावर वहाँ आके देख करके चले जाते. तो मुद्दा ये है कि वो जाते कहाँ हैं और यहाँ क्यों नहीं आते. अगर जब हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर चाहिए क्या, हमें वहाँ पर एक अच्छा पैकेज चाहिए,
फैसिलिटीज चाहिए, मेडिक्लेम चाहिए, सो मेनी थिंग्स चाहिए, सारी चीजें हैं इंडस्ट्री में, बट फिर भी इंजीनियर्स की इंडस्ट्री में नहीं, तो दैट इज द मेन पॉइंट। अब क्वेश्चन आते हैं क्यों नहीं आता, सो आगे चलते हैं। सो इन 2015 में 2015 में मैंने मल्टीनेशनल डेनिश कंपनी ज्वाइन की, तो राइट, ये वो सब कंपनी है जो कि 100 करोड़ से 3000 करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं सालाना। तो मुद्दे की बात ये कि अगर इंजीनियर्स मल्टीनेशनल कंपनी में भी नहीं जा रहे तो सब जाएंगे कहाँ, तो वो जा कहाँ रहे। तो यही से कॉन्सेप्ट से ड्राइव होता है कि मतलब मीन है कि मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मान के चलिए 2005 में मैं पहली बार कभी सर्विस मैनेजर बना, तो मेरी जर्नी 2005 से स्टार्ट हुई। बेसिकली सर्च था, बेसिकली स्किल्ड मैन, बट मैं जिन भी कंपनीज में रहा वहां पर मैं कभी भी उनको रिक्रूट नहीं कर पाया, राइट। सो should this matter raise a fundamental question in the mind? If they are not joining us, then where are they going? And more importantly, what exactly they are looking for? कि अगर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, अगर वो इंडस्ट्री में नहीं आ रहे तो वो कहाँ जा रहे हैं, वो ढूंढ के आ रहे हैं, ये क्वेश्चन ही माइंड में आता है, राइट सर, कि वो लोग ढूंढ के आ रहे हैं और वो जाएंगे कहाँ। So these questions continue to stay with me for years. And I was trying to understand the root cause by 2020. In 2020, I realized there was a genuine need to give a proper exposure of the industry to the fresh graduates so that they could develop a better understanding of what lies ahead. So 2020 में मेरे को बहुत सारी वर्किंग करते करते माइंड में आता है कि क्यों ना एक मैनुअल क्रिएट किया जाए just to give the exposure to the fresh graduates so that they will able to understand what is going on inside the industry. Industry कैसे काम करती है, इंडस्ट्री अपने तरीके से काम करती है, उसका इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई लेना देना नहीं, उसको नहीं मतलब है कि सर हम वहाँ पर किस टाइप का हमारा कैरिकुलम है, हम क्या पढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्री को पता है कि मेरे को आज शाम तक इतने घंटे में इतनी मैन पावर लगा करके पर्टिकुलर इतना आउटकम निकालना है, दैट इज व्हाट इंडस्ट्री। उसको नहीं मतलब है कि वो इंडस्ट्री की वो उस प्रोडक्टिविटी को देने वाला जो कैंडिडेट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका पैकेजेस क्या है, उसके पर्स क्या है। इंडस्ट्री कहती है कि मेरा व्हाट इज द आउटकम, मेरे को शाम तक मैंने बनाया क्या। अगर उसका पर आवर वाला पर मैन पावर प्रोडक्टिविटी नहीं आया तो इंडस्ट्री फेल हो जाती है, राइट। सो यहाँ पर एक चीज फिर आगे निकल कर क्या आती है। So basically this, so over 2020 में मैंने realize किया कि it's better to produce a basically what you call the manual. So एक manual लिखा जाए so that जो industry में जो new candidates आते हैं at the time of recruitment उनको train कर पाए, उनको exposure दे पाए। So just even I started one of the manual. So वो मैनुअल जब ड्राइव होते होते इस माइंड में आया कि इंडस्ट्री मैनुअल का जो दायरा बहुत छोटा है, मैनुअल हमने बनाया तो वो कितने लोगों तक पहुंचेगा, जो इंडस्ट्री में आएंगे, जो नहीं आएंगे उन तक तो नहीं पहुंचा सकता। तो मुद्दा तो ये है कि जो इंडस्ट्री में नहीं आ रहा उस तक एक बात तो है पहुंचाना, कि बात कैसे पहुंचे कि उन लोगों को इस बात का बेनिफिट मिले। तो वहां से ड्राइव हुआ 2021 में जाकर के मेरे माइंड में आया इट्स बेटर टू गो विद वन ऑफ द बुक, एक किताब लिखी है कि उसमें जो मैनुअल ना हो, जो मैनुअल भी हो बट उसके अंदर गाइडलाइंस हो, उसके अंदर प्रॉब्लम भी हो, सॉल्यूशन भी हो। So in 2021 I finally began writing a book to the issue of the unemployment among engineers with the aim of revealing the real job requirements of the industry. Initially, based on my personal work experience, it appeared as, however, fresh graduates either did not want to join the industry, lacking the required skills, or faced various other challenges. Yet the bigger question remained, where are they actually going? अभी भी मुद्दा था कि नहीं आ रहे तो ठीक है, जा कर रहे जाएंगे कहाँ? So while writing the book, this compelled me to conduct a deeper study and the research on the employment status of the skilled workers in the country. I went through several published articles in leading newspapers like Indian Express and the Times of India, as well as reports and the research papers from the IIT professors. These research highlighted new challenges of the employability and the other challenges of the industry itself.
तो जब मैं किताब लिखने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को ध्यान आता है कि इस मैटर को थोड़ा स्टडी करने के लिए कि मेरे पास में जो मुद्दा है ये मेरा अपना सेल्फ जजमेंट है, वेदर ये मेरा जजमेंट है या ये एक्चुअल मेरा मुद्दा है, हो सकता है कि खाली मेरा जजमेंट है। तो मैंने इस मैटर को रिसर्च करने के लिए, इस मैटर के लिए काफी अगर डीपली रिसर्च किया और सर सेवरल मीन दैट की इंडियन एक्सप्रेस और वेरियस न्यूज़पेपर्स में इस टाइप को बहुत सारा डेटा है जो मेरे को 2018-19 से भी आगे का है फर्दर डेटा मिला। सो ओवर एंड ऑल ऑन स्ट्राइकिंग जो वन स्ट्राइकिंग डेटा पुट आउट बाय द इंडियन एक्सप्रेस रिवील्ड दैट एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है, स्टेप आउट यही से सर ड्राइव हुआ। अब जो बात बताने वाला हूँ तो इंडियन एक्सप्रेस रिवील्ड दैट द 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स to graduate every year from institutes across India. However, only about 5 to 7% of them able to secure jobs aligned with their qualifications in their core domains. यानी कि 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल इंजीनियरिंग पास आउट करता है और उसमें से 5 to 7% को उसकी कोर डोमेन में जॉब है। A significant numbers of the candidates do not find employment in their field of study and nearly 47% engineers remain unemployed and a deeply painful concerning reality. Mean that कि 15 लाख में से 5 to 7% engineers को जॉब मिला उनके कोर डोमेन में जिसके लिए उन्होंने स्टडी की थी और 47 अप्रोक्सीमेटली ये रह गए अनएम्प्लॉयड। यानी कि 15 लाख का 47% सर 7 लाख, यानी कि हर साल 15 लाख में से 7 लाख बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट में चला गया, राइट। और इट मीन दैट कि 42 to 45% केवल स्टूडेंट्स को अभी जॉब में जा रहे हैं। 15 लाख का 42 to 45% केवल स्टूडेंट्स को जॉब में जा रहे हैं। वो एक्चुअल में जॉब में नहीं जा रहे, वो somehow एडजस्ट हो जा रहे हैं, बट वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं है, बट उसको टेक्निकली रिसर्च करेंगे तो सर वो उन्होंने ऐसा नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियर था तो उसने मैकेनिकल इंजीनियर की जो जॉब में नहीं, वो इलेक्ट्रिकल में चला गया, somehow जॉब मिला उसमें खप गया, बट अच्छी बात है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट में भी नहीं है, इट्स ओके। सो while going through these studies deeply, I finally got my answers both to where the fresh graduates are going and what exactly they are looking for. Along the way, तो इस स्टडी से सर मेरे को 2 आंसर मिले कि एक तो स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहा और वो इंडस्ट्री में क्यों नहीं आ रहा। इंडस्ट्री में क्यों नहीं आ रहा उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। स्टेप आउट बुक उसी चीज को डिफाइन कर रही है और वो जा रहा है, ये भी आपको बुक क्लियर मिलेगा कि वो जा रहा है। Along the way, I discovered many hidden factors behind both employment and the unemployment. The real forces that decide whether a job opportunity is gained or a lost. Sir, employment को अगर ध्यान से अगर स्टडी कर ले कि what is employment, right? तो unemployment वहीं से है। अगर employment एक बेसिकली कॉम्बो जो पैक है, जैसे हम लोग कभी बार जो अपने मैकडोनल्ड्स में जाते हैं तो वहां पर मिलता है कॉम्बो पैक, एक मील्स जिसमें कि कंप्लीट मील्स कुछ में होना चाहिए। एक भी चीज निकाल देंगे एक थाली में से, अगर कंप्लीट थाली ले रहे हैं उसमें एक भी डिश को निकाल दीजिए, चाहे स्वीट्स को निकाल दीजिए, चाहे उसमें से अचार निकाल दीजिए, तो शायद वो कंप्लीट मील नहीं बना। तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट की थाली में से एक चीज को निकाल दीजिए तो आप अनएम्प्लॉयमेंट में चले। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इसी फैक्टर पर काम कर रही है। So as I look deeper into these numbers, I realized they were not just the data. They carried the painful stories of the countless young engineers full of dreams yet surrounded by uncertainty. I could feel their pain, their struggle, and the quiet fear of the seeing their dreams fade away while striving to protect their dignity. Those struggles taught me that every setback has a purpose and that there is always a way out, because I have traveled the same journey unto myself. I believe others too can overcome from their
challenges by following the same simple yet meaningful path. कि मैं जैसे अपनी जर्नी को ट्रैवल करता हुआ हूँ तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया, जो प्रोडक्शन, टेक्नीशियन, वेरियस प्रोफाइल्स पर, और मैं नीचे से ऊपर बढ़ता बढ़ता है। आउट ऑफ 33 इयर्स में से मैंने अराउंड करीब 14 इयर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बिताए, एज एन टेक्नीशियन, एज सर्विस इंजीनियर, वेरियस प्रोफाइल्स पर, एज एन मैनेजर। तो उसके बाद में लास्ट 17 इयर्स और 18 इयर्स से मैं अभी काम कर रहा हूँ एक जो मैकेनाइज फील्ड में, ऑटोमेशन में, जो टोटली मेरी फील्ड से डिफरेंट है, राइट। मैं आज लास्ट 17-18 ईयर्स से उस इंडस्ट्री को लीड कर रहा हूँ जो सब्जेक्ट जो मैंने कभी पढ़े नहीं, राइट। सो ओवर एंड ऑल, सो जब मैं ये जर्नी से निकल सकता हूँ तो और लोग क्यों नहीं निकल सकते, ये एक मुद्दा है। जो सीढ़ी मैं चढ़ के आ पाया तो वो सीढ़ी हम सब लोग चढ़ सकते हैं, राइट। सो basically these findings gave me a new direction of thought and reinforced my belief that these must be shared with the young generations, to not merely as information but as a source of guidance and the hope offering practical solutions for a better path towards the employment. So that is how Step Out was born. Step Out is not just a book, it is a guide filled with real life stories, personal interviews and research insights, which show the actual industry requirements along with the practical guidance to help young engineers to find their way forward. So इस तरीके से सर Step Out यहाँ पर बहुत हो रही है। Step Out एक्चुअल में देखा जाए तो Step Out अनएम्प्लॉयमेंट को कहाँ पर फोकस कर रही है? Step Out अनएम्प्लॉयमेंट के उस हिस्से को फोकस कर रही है सर जहाँ पर कि 47% अनएम्प्लॉयड यूथ है। अब क्वेश्चन ये है कि 47% क्यों है? अगर मैं देखूं तो यानी कि इस साल 2025-26 में जो स्टूडेंट 15 लाख बच्चे पास होंगे उसमें से करीब 7 लाख को जॉब नहीं मिली। क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं मिली, या वो नहीं कर रहे या जॉब नहीं, दोनों में। बट यहाँ पर पेनफुल एरिया, अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो 35 लाख स्टूडेंट पिछले 5 साल में अनएम्प्लॉयड है, और अगले 5 साल में देखूं तो दोबारा तो 35 से 70 लाख स्टूडेंट अगर पिछला 5 अगले 5 मिलाकर के अगले ओवर 10 साल में अनएम्प्लॉयड यूथ में जा चुका है। सो ओवर एंड ऑल तो बहुत ज्यादा डीपली वर्कआउट करके, बहुत सारी चीजों को खोद करके, डिग आउट करके, स्टेप आउट में बहुत सारी केस स्टडीज है मेरे पास, राइट, कि अगर किसी की जॉब नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या क्या हिडन फैक्टर्स थे जहां पर जिसको हिट किया जा सकता था बट स्टूडेंट्स नहीं कर पाए ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। सो बट स्टेप आउट आपको उस वहां पर जाकर के उन स्टूडेंट्स का पेन, उनकी चैलेंजेस, क्योंकि सर एक चीज और है, आज एक सोशल मीडिया पर एक नेटवर्क और चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में इंजीनियर्स क्यों अनएम्प्लॉयमेंट में हैं। तो अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो वो कहता है कि सोशल मीडिया पर भी बहुत बड़ा डेटा पड़ा हुआ है कि इंजीनियर से पढ़ाई नहीं की, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का भी फिंगरिंग हो जाता है, राइट, सो एंड सो थिंग, एग्री। बट आज इनके पास मे भी वो 45% पर हूँ, उनकी जो परसेंटेज, उनका पासिंग मार्क्स मे भी 45% हो, मे भी 98% हो, बट है तो अनएम्प्लॉयड, उनके पास में सारी वैलिड डिग्री है, राइट। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट वी हैव टू डू, अब जो क्या करेंगे, राइट। तो स्टेप आउट, इन्हीं सब आप अगर स्टेप आउट को गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारे रियल लाइफ टाइम स्टोरीज मिलेंगी। जो स्टोरीज आप बन रही थी जब ये थोड़ी बहुत शक्ल सूरत ले रही थी, तो इसलिए मेरे माइंड में आ रहा था कि किताब तो लिखना है भाई, इसको भी पब्लिश हो जाएगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किताब को भी जो पब्लिश कौन करेगा, जिसका हेडिंग ही अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से था। उन दोनों में उसका नाम सर स्टेप आउट नहीं था, स्टेप आउट नाम एक दिन किसी स्टोरी लिखते लिखते में आता है। तो सर उसके लिए मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेज पर गया, उनके रिप्लाई भी आए, कुछ लिखे, कुछ एक के रिप्लाई तो 2-2 दिन में आ गए, 2-6 महीने पे नहीं आते थे, वो 2-2 दिन में भी आए। बट उन्होंने कहा कि भी हम इस मुद्दे को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, हम इस मुद्दे को लेकर के आगे
इस विजन नहीं बढ़ सकते। तो ओवर एंड ऑल मैं बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस से होता हुआ मैं आप तक पहुंचा, जो डॉक्टर साहब तक। सो ओवर एंड ऑल आपसे जो मिला, आपसे बातचीत हुई, तो मेरे को लगा कि मैं किसी पब्लिकेशन हाउस में आया हूँ, राइट, जहाँ पर किताब के बारे में बात हो रही है, या आप मेरी बात समझ पाओगे या मैं आपको अपनी बात को समझा पाऊंगा। तो वहाँ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, राइट। और फिर हमने यहाँ से जर्नी की शुरुआत की। बहुत अच्छा सहयोग मिला अनुराधा प्रकाशन का, डॉक्टर साहब का, सो दैट आपकी टीम का, कि आज ये किताब इस किताब की शक्ल में आपका एक मुद्दा था, विचार था, और कुछ नहीं किताब में, और कुछ नहीं, किताब में विचार है। विचार में मेरी भी छोटी मोटी स्टोरी मिलेगी आपको, मेरी भी बायोग्राफी उसमें चल रही है, राइट। क्योंकि मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ, मैं हर चैलेंज को अपनी से कंपेयर कर रहा हूँ कि मैं होता था, मैं क्या करता, राइट। मैं अनएम्प्लॉयमेंट को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ अनएम्प्लॉयड नाम की चीज होती है, कभी हम भी अनएम्प्लॉयड थे, ऐसी बात नहीं है। तो हमने एक दिन काम ढूंढ लिया, फिर काम ने मेरे को ढूंढा, फिर मैंने कभी दोबारा काम नहीं किया। आज तो मेरे को मेरा काम है। सो बस मेरी साइड से सर ये था। आई होप सो कि आप लोग को बात Author of Step Out. To close the event today, I would like to express my heartfelt gratitude to all of you. First, I sincerely thanks our distinguished panelists for sharing their valuable insights, experiences, and depth of study. Your presence has made this discussion truly meaningful. I also extend my gratitude to all the attendees, especially the young engineers and the students here today. Your eagerness, questions, and the engagement is not basically happened somehow. The Step Out reminded us why your Step Out was written, to guide, inspire, and empower you in your journey. But thank you once again for being part of the special occasion. I hope Step Out serve as a helpful companion in your professional journey and inspires you to step forward with confidence and dignity. But thank you.